तो हुआ क्या, मुझे बैक टू बैक रियलिटी चेक्स ऐसे मिलते गए कि मेरा था भाई बस अब मुझसे नहीं सहा जाएगा भैया. So today we are gonna talk a lot. I cannot actually say I wasn't active, but I was not posting a long formatted video. Idea है कि क्या हो रहा था and why I was not very active and I was not posting any vlogs or anything. I would give a 3.9 star to this one because कुछ ज़्यादा नहीं था. It is a predictable book. तो जो अगर मैं कभी कोई बुक लिखने वाली हूँ इन फ्यूचर तो मुझे लगता है मैं पहली बुक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ही लिखूंगी. Hi guys, welcome back to my channel, and yes, I am back with this long video. So today we are gonna talk a lot, like what was going on, why was I not active on YouTube. I cannot actually say I wasn't active, but I was not posting a long formatted video, right? So let me give you all firstly a reason why was I not there. Firstly, I had my exams which required my attention more than this thing, so I was more focused over there, and some other things were also going on in my life, so I that is why I was not here. I actually didn't had that much of time to even record or like post anything. I had few ideas in my brain, but of course I cannot execute them until unless I have time or I have like everything required for that concept. So I am sorry, but not sorry because yeah, it required my presence or my attention more than this thing. Yeah, I bailed for like too long, but no, I'm back. I guess that's a good thing. Okay, so first some first, I'm not gonna lie anymore. I'm not gonna stick to those unreal plans or unrealistic goals that yeah, I'll be posting videos every time every week. I will make sure that I post video at least a month. Okay, and I will try my best to be regular or to be in touch with you all because I really want this thing to grow, and I'm crossing my fingers too hard. Like please, let's just touch 1000 subscriber now in this year, and I hope so. This is my goal only, or I don't know. I'm actually feeling very overwhelmed. Like the past 6 7 days weren't very great on me, and I wanted to talk about a lot of things, but I cannot since I don't know. Maybe I'm not in a state to talk about it, or I just don't feel like talking about it because like bygones be bygones, and why to carry bad memories? Let it be and move on. But of course, it is difficult to move on when you have things going on in your brain, and so let it be. Let's not discuss it. It is not required. Okay, let's talk about what happened. I actually completed my master's and I got my degree last year. So what I decided is that to take a break and study for a certain exam. So I did that. I did that and I gave that exam. So after this, now a post exam thing, what I'm feeling is like mixed emotions, everything. तो हुआ क्या, मुझे बैक टू बैक रियलिटी चेक्स ऐसे मिलते गए कि मेरा था भाई बस अब मुझसे नहीं सहा जाएगा भैया. और फिर ऑफ कोर्स कि भाई अब क्या आप एक्सेप्ट ही करोगे ना जो हो रहा है, ठीक है होने दो, अब क्या है, यही फेट है. बट नहीं, दिस इज मी सुहानी. आई डोंट एक्सेप्ट थिंग्स दैट इजिली. आई थिंक देम, आई रीथिंक देम, एंड देन आई ओवर थिंक देम, एंड देन देयर इज अ स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस कि हाँ ठीक है, let's accept it. This is life. This is what happens with you, Suhani. Learn a lesson and move on. अब लाइफ के दुखड़े ख़त्म करने के बाद मैं बताती हूँ कि अच्छा क्या क्या हुआ है. सो अच्छा, पहली चीज़ तो ये हुआ है कि आई हैव मास्टर्स डिग्री नाउ. ओके, तो मैं काफ़ी एजुकेटेड हूँ. दूसरी अच्छी चीज़ ये हुई है कि मैंने ना एक नई हैबिट शुरू करी है. वो हैबिट ये है कि मैं अब अपने आप को थोड़ा सा फिट रखने के लिए अपना डांस वापस से शुरू कर रही हूँ. और डांस वॉज माई फर्स्ट लव, बट ऑफकोर्स बीइंग टॉम बॉय गर्ली ऑलवेज, मैं बास्केटबॉल को मैंने हमेशा अपनी प्रायोरिटी बनाया है. बट समवेयर आई न्यू कि मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती हूँ, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं हो सकता है. आई लव्ड बोथ ऑफ देम अ लॉट. और बट यही था कि बास्केटबॉल हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ फेम एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम. So I never found an opportunity to praise my dance too, or to even appreciate that I know Kathak and I can do Kathak bhai. It is not an easy dance form.
तो हाँ, तो मैं अपने डांस पे फिर से काम कर रही हूँ और हो सकता है इस चैनल पे आपको मेरे डांस के कुछ वीडियोस देखने को मिले, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सरप्राइज। एंड जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग बिग बिग बिग। तो वो मैं थोड़ा रुक के रिवील करूँगी, क्योंकि अभी ना उसका पूरी प्रिपरेशंस कंफर्म नहीं हुई हैं और पूरी चीज़ें प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मैं उन चीज़ों को लेके। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो 1 और 2 मंथ्स में ख़त्म हो जाएगा, तो वो मैं आपको बताऊँगी। एंड हाँ, तो अभी फ़िलहाल यही सब चल रहा है। तो अब अपने बारे में बातें तो बहुत सारी हो गई, अब उस चीज़ की बात करते हैं जिसके बारे में हम लोगों को बात करना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अभी ना 2026 में मैंने बहुत सारी बुक्स तो नहीं पढ़ी हैं, बट मैंने 1 2 3 4 5 6 ये 6 बुक्स ही पढ़ी हैं। और मैं बताऊंगी कि कौन सी कैसी बुक है, क्योंकि ऑफ कोर्स आई लव रैंटिंग अबाउट बुक्स एंड वट एवर आई रीड। तो पहली जो बुक मैंने ख़त्म करी 2026 में जनवरी में, वो थी फियरलेस, और ये ना पावरलेस ट्रायोलॉजी का पार्ट है और ये थर्ड बुक है, लास्ट बुक है आई गेस। अब इसके बाद शायद कोई बुक नहीं आएगी जहाँ तक मुझे पता है। तो बेसिकली इसमें ना पेडेन काय और किट का ही वही लव ट्रायंगल है, बट इवेंचुअली पेडेन को मतलब रियलाइज होता है कि मतलब किट वॉज ऑल्सो नॉट अ बैड गाय हियर, एंड सब कोई एक दूसरे के लिए केयर ही कर रहे थे। एंड इट इज़ अ वेरी 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 गुड बुक। अगर आपको पढ़नी है ना, अगर आपको मतलब कोई ऐसी बुक पढ़नी है जो मतलब रियलिटी से बहुत कोसों दूर है, तो ये वो बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए। क्योंकि मेरी तरफ से पर्सनली इसको आउट ऑफ 5 4.2 स्टार्स दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी फियरलेस लेंदी है, थोड़ा बीच बीच में मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। एंड जो जो चीज़ें मतलब ख़त्म हो सकती हैं एक चैप्टर में, उसको 2 3 चैप्टर में ख़त्म किया गया है। बट आई गेस दिस इज़ द जिस्ट ऑफ यही तो मज़ा है कि बुक्स पढ़ने का, कि आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला, आगे कब तक क्या होगा, क्या कब आएगा। तो यस, जो नेक्स्ट बुक है वो मैं लास्ट आई गेस 2 साल से ट्राई कर रही हूँ रीड करने की, और मैं नहीं पढ़ पा रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ ऑफकोर्स रीजंस हो जा रहे थे, मैं नहीं ले पा रही थी। बट फाइनली मैंने बुक मंगवा ली थी, और ये है द इनहेरिटेंस गेम्स। भाई इस बुक के बारे में मैंने इतना बुक टॉक में मतलब इसका फेम देखा है, और इतना इसका मतलब क्रेज़ है, इतनी फेमस है ये सीरीज़ पूरी, इसको तो पढ़ना बनता ही था ना। एंड सिंस आई हैव रेड इट, आई कैन नॉट पुट द अदर बुक डाउन। और उसकी जो सेकेंड बुक है वो है द हॉथरन लेगेसी, एंड जेमसन ग्रेसन एंड एवरी हैज़ माई हार्ट। भाई जो ना क्विजेज, जो पजल्स, जो ये लोग गेम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको लिटरली पजल सॉल्व करना, मिस्ट्री सॉल्व करना या मिस्ट्री पढ़ना पसंद है, तो ये सीरीज़ ना प्लीज़ रीड करो। और अगर आपको थोड़ा सा रोमांस एंगल भी चाहिए उसमें, और आपको लव ट्राइंगल पढ़ना है कोई, तो ये दिस सीरीज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ यू शुड रीड। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है। आगे इसकी 2 बुक्स और हैं, वो भी हैं मेरे पास, तो मैं वो रीड करूँगी, तब मैं आपको उसका रिव्यू करूँगी। फिर मैंने पढ़ी थी फरवरी में 2 minute silence to appreciate this beauty. What has Frida McFadden written? I mean, what the hell is going on in this book? I was literally in shock for like next 3 to 4 days. What has happened and how? I seriously couldn't predict the ending or whatever, the plot or suspense or mystery at all. Hands down to Frida McFadden. भाई इतना अच्छा कोई कैसे लिख सकता है, और इतनी क्रेजी साइकोलॉजिकल थ्रिलर। ओके, सो बेसिकली प्लॉट ये है, एक तो कोई तो कपल है जो शादी करके बहुत बड़े से घर में रह रहा है। मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ स्टोरी लाइन बताऊंगी, मैं तुमको कोई भी ऐसा ना स्पॉइलर नहीं दूंगी, क्योंकि यू मस्ट रीड दिस बुक फॉर वंस। एक बार प्लीज़ पढ़ना, मेरे कहने में पढ़ना, इफ़ यू लव रीडिंग बुक्स। क्योंकि तो वहाँ पे वो उसको ना एक चाहिए होती है मेड, तो वो मेड एक हायर करती है, मेड बोलो या हाउस हेल्प बोलो, ऐसा कुछ भी। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। There is, of course, there is this room at the top in their house which has no windows, which has a lock outside. You cannot open the door from inside, so you can get the gist. I mean, it is creepy, of course. This one is creepy. This one is, I know, I cannot comment. This one was a 5-star read. Then I read a very cute romantasy book which is Divine Rivals, and मैंने ना इसका फर्स्ट पार्टी मंगाया था बिकॉज आई वॉज वेरी अनश्योर, मतलब ऐसा किडिश बुक तो नहीं है क्या है, बट दिस इज लाइक लिटरली वन ऑफ द
most cutest and sweetest book that I have read. क्योंकि of course it is very far from reality, but here in this book what is happening, the gods are on war, एंड ऐसा हो रहा है कि ये दोनों कपल्स बाय समहाउ दे डिस्कवर्स कि उनके पास उनके ग्रैंड मदर का ना एक टाइपराइटर है फ्रॉम विच दे कैन कनेक्ट, और उस ज़माने में ना टेलीफोन्स या कुछ नहीं हुआ करता है, तो ये लोग उससे टाइप करके कोई लेटर लिख रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, तो वो उसके घर पहुंच जाएगा, और वो अगर लिख रहा है तो वो उसके घर पहुंच जाएगा. सो सम हाउ दे डिस्कवर दिस एंड देयर फ्रेंडशिप डीपेंस एंड देन दे हैव टू गो टू वॉर, you know, to fight and in the front line. So everything, it is one of the nicest and sweetest book that I have read. I mean, hands down I would give 3.9 star to this one, because कुछ ज़्यादा नहीं था. इट इज़ अ प्रिडिक्टेबल बुक. तो जो बुक्स बहुत प्रिडिक्टेबल होती हैं वो मेरे लिए इतनी खास नहीं होती हैं, बट स्टिल फॉर दैट जिगली रोमांस एंड एवरीथिंग आई विल गिव इट अ 3.9 स्टार. बट डोंट गो अवे येट, क्योंकि अभी ना मेरे पास मार्च का TBR भी रखा है, तो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कि मार्च में मेरे पास क्या क्या है पढ़ने के लिए, और मैं शायद नहीं पढ़ पाऊँगी बिकॉज आई नो आई एम नॉट दैट फास्ट ऑफ अ रीडर. ठीक है, तो पहली बुक है ऑफकोर्स फ्रीडम फेडन की द टेनेंट, और इसके बारे में मैंने बहुत सुना है एंड मैं नहीं पढ़ रही हूँ उसका कुछ भी, मतलब पीछे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि फिर ना प्रेडिक्ट करना मैं शुरू कर देती हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा. मुझे ना ब्लैंक ही चाहिए, मुझे ब्लैंक बोर्ड दो, और मैं चाहती हूँ वो मैं खुद मिस्ट्री सॉल्व करूँ, मेरे खुद पॉइंट्स बने, मैं खुद जाऊँ लिखूँ. तो हाँ, पहली बुक ये है. फिर ना मैंने सेम राइटर से जिसने ये बुक लिखी है, रेबेका रॉस, डिवाइन राइवल्स की ही, मैंने दूसरी उनकी ना बुक की सीरीज़ है अ रिवर एनचैंटेड, अ फायर एंडलेस आई गेस. हाँ, तो मैंने उनकी ये दोनों बुक्स मंगाई है. बुक्स काफ़ी अच्छी रेटिंग्स थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई करके तो देखती हूँ, एटलीस्ट एक और बुक तो ट्राई करना डिजर्व करती हैं वो. उसके बाद है हमारी वही इनहेरिटेंस गेम्स की सीरीज़ में द फाइनल गैम्बिट एंड द ब्रदर्स हॉथ्रोन. ये दोनों बुक्स मुझे पढ़नी है, एंड आई एम होपिंग कि मैं शायद ये अब शुरू करूँ नेक्स्ट, बट वी नेवर नो. मैं फ्रीडम मैकफेडन भी पढ़ सकती हूँ. देन वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉर डी, और ऑफकोर्स फ्रीडम मैकफेडन. मैं ना फ्रीडम मैकफेडन की फ़ैन हो चुकी हूँ, और मुझे लगता है नेक्स्ट शायद मेरी, अगर मैं कभी बुक्स लिखूंगी, अगर मैं कभी, फिंगर्स क्रॉस्ड, हो सकता है अगर मैं कभी बुक लिखने जाऊंगी, तो मुझे लगता है मैं पहली बुक साइकोलॉजिकल थ्रिलर ही लिखूंगी, क्योंकि फ्रीडम मैकफेडन हैज़ कन्विंस्ड मी टू राइट दैट क्रीपी लेवल ऑफ बुक्स, एंड आई एम गोना रीड ऑल ऑफ देम. तो ये था बुक्स के बारे में. ऑल्सो मैंने ना अपना थोड़ा सा रूम डेकोरेट करना शुरू किया है, तो मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट हो जाए उसके बाद. एंड आई होप कि इसके बाद हम लोग की और बातें हों, एंड आपको ये वीडियो पसंद आया हो. और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को. एंड डू कमेंट योर फेवरेट पार्ट और योर फेवरेट बुक और वट एवर यू फील अबाउट दिस वीडियो. सो थैंक यू. या मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.